Today we are going to discuss some important trigonometric types of integration. आप देख रहे हैं हमारा चैनल मैथ्स लर्निंग विद पिंकेश जैन। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। टाइप नंबर 17, इवल्यूशन ऑफ इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म 1/a+b sin square x dx, 1/a plus b cos square x dx, 1/a sin square x plus b cos square x dx, 1/a sin x plus b cos x whole square dx, and 1/a plus b sin square x plus c cos square x dx, where a, b and c are real numbers. To evaluate this type of integrals, we use the following algorithm. Step 1, divide numerator and denominator both by cos square x. Step 2, replace sec square x if any in denominator by 1 plus tan square any in denominator. And step 3, put tan x equal to t so that sec square x dx equal to dt. Now question number 1. I is equal to integration sin x upon sin 3x. मैंने एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन ले लिया, सीधा नहीं लिया. अब फर्स्ट स्टेप sin x एज इट इज और इन प्लेस ऑफ sin 3x अप्लाई फार्मूला sin 3 वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे अपन. 3 sin x minus 4 sin cube x into dx. अब नाउ न्यूमरेटर एज इट इज, राइट sin x एज इट इज और इन डिनोमिनेटर टेकिंग कॉमन sin x. So we get 3 minus 4 sin square x into dx. Sin x and sin x cancel. So this question convert into 1 upon, look like a plus b sin square x, where a equal to 3 or b equal to minus 4. So dividing numerator and denominator by dividing numerator and denominator by cos square x, sorry. So therefore I equal to, अब न्यूमरेटर में ओनली 1 है, 1 को cos स्क्वायर x से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा 1 अपॉन cos स्क्वायर x मीन्स sec स्क्वायर x अपॉन 3 अपॉन cos स्क्वायर x मीन्स 3 इंटू sec स्क्वायर x माइनस 4 इंटू sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x tan स्क्वायर x. So step 1 is over, dividing numerator and denominator by cos square x. Step 2, replace sec square x by 1 plus tan square x if any in denominator only, not in numerator. So 3, 1 plus tan square x minus 4 tan x into dx. अब now simplify, open the bracket. So 3 into 1 3 plus 3 tan square x minus 4 tan square x. Next step, I equal to integration sec square x as it is. अब 3 into 1 plus tan square x, so 3 plus 3 tan square x. So 3 plus 3 tan square x minus 4 tan square x into dx. More simplify, sec square x upon 3 minus tan square x. Let
10x इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 10x सेक स्क्वायर एक्स और t का होगा dt अपॉन dx। तो dx को हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। तो देयरफॉर I इक्वल टू इंटीग्रेशन dt अपॉन 3 माइनस टी स्क्वायर, और 3 को हम लिख सकते हैं √3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब नाउ अप्लाई फार्मूला, विच फार्मूला वी अप्लाई? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a लॉग बेस ई, और अंदर आ जाएगा आपका a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स plus c. So apply this formula. So next step, 1 upon 2a means 1 upon 2 root 3. Therefore I equal to 1 upon 2 root 3 log mod a plus x, यहाँ पे a कितना था √3, तो √3 plus t अपॉन √3 माइनस t, और हमने t किसको लेट किया था 10x को, तो t के प्लेस पे हम क्या रख देंगे 10x। So next step 1 upon 2 root 3 log √3 plus 10x upon √3 minus 10x. Question number 2. This homework questions. I equal to integration cos x upon cos 3x into dx. Question number 3. I equal to 1 upon 4 plus 5 cos square x into dx. Next type, evaluation of integrals of the form 1 upon a plus b sin x. यहाँ पे इस बार sin x और cos x की पावर कितनी 1 है, 1 upon a plus b cos x, 1 upon a sin x plus b cos x, 1 upon a sin x plus b cos x plus c dx. To evaluate this type of integrals, we use the following algorithm. Step 1, put sin x equal to 2 tan x by 2 upon 1 plus tan square x by 2 means half angle formula, and cos x equal to 1 minus tan square x by 2 upon 1 plus tan square x by 2. Step 2, replace 1 plus tan square x by 2 in the numerator by sec square x by 2. Step 3, put tan x by 2 equal to t. So that 1 upon 2 sec square x by 2 dx equal to dt. अब इससे बेस्ड अपन एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4. I equal to integration 1 upon 4 plus sin x into dx. अब नेक्स्ट स्टेप 1 upon 4 plus, in place of sin x we can write 2 tan x by 2 upon 1 plus tan square x by 2 into dx. अब नाउ टेकिंग एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 न्यूमरेटर में आ जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और अपन में आएगा 4 प्लस 4 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 टेन एक्स बाई 2 into dx. Next step
1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू न्यूमरेटर, उसके प्लेस में हम लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स, और अपॉन में आ जाएगा आपका, अरेंज करके लिख देंगे इसको अपन, 4 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 टेन एक्स बाई टू प्लस 4। अब हम लेट कर लेंगे, लेट 10x बाई टू इक्वल टू टी, लेट 10x बाई टू इक्वल टू टी। तो डेरिवेटिव 10x बाई टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू एक्स बाई टू का होगा 1 बाई टू, और फिर टी का अपन करेंगे डी टी अपॉन डी एक्स, तो डी एक्स हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो देयर फोर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब न्यूमरेटर में था सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स, तो उसके प्लेस में हम लिख देंगे 2 डी टी, और अपन में था 4 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, यानी आ जाएगा वहां पे 4t स्क्वायर प्लस 2 टेन एक्स बाई टू यानी 2t, और प्लस 4। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं अपन, 4 टेन स्क्वायर यानी 4t स्क्वायर 2t प्लस 4, 4t स्क्वायर 2t प्लस 4। अब टेकिंग कॉमन 2 और कैंसिल कर दो ऊपर न्यूमरेटर से, 2 dt अपॉन 2 कॉमन ले लिया, सो 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 2, 2 और 2 कैंसिल, तो ये आपकी वन ऑफ द टाइप बन गई है dt अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना अपन को। उसके लिए अपन क्या करेंगे, फर्स्ट टेकिंग कॉमन 2 इन डिनोमिनेटर, सो dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टू टी प्लस 1। अब इसको अपन क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टू टी को टी प्लस 1 बाय 4 होल स्क्वायर, देयरफॉर आई इज इक्वल टू 1 बाय टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी प्लस 1 बाय 4 होल स्क्वायर माइनस 1 बाय 4 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 1 बाय 16 और प्लस 1। एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं अपन, आउटसाइड 1 बाई टू था, टी प्लस 1 बाय 4 का होल स्क्वायर और माइनस 1 बाय 4 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, और प्लस 1, 1 बाई टू टी प्लस 1 बाय 4 होल स्क्वायर माइनस 1 बाय 16 प्लस 1। सो नेक्स्ट स्टेप 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी प्लस 1 बाय 4 होल स्क्वायर। अब एलसीएम लेंगे तो 16 माइनस 1 यानी क्या आएगा 15 अपॉन 16, उसका साइन क्या आएगा प्लस में आएगा, क्योंकि अगर अलग से करके देख लो, हमेशा मैंने बोला है 1 माइनस 1 बाय 16, टेकिंग एलसीएम, सो 16 माइनस 1 अपॉन 16, सो वी गेट 15 अपॉन 16। यहीं पे मिस्टेक्स होती है हमेशा जब भी आप कैलकुलेट करोगे, तो प्लीज टेक केयर। यह आ जाएगा प्लस रूट 15 अपॉन 4 होल स्क्वायर इंटू डी टी। अब नाउ अप्लाई फार्मूला, तो 1 बाई टू एज इट इज, अब ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 1 अपॉन ए रूट 15 अपॉन 4 इंटू 10 इनवर्स एक्स अपॉन टी प्लस 1 अपॉन 4 अपॉन रूट 15 अपॉन 4 प्लस कांस्टेंट सी। मोर सिंप्लीफाई, देखो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, सो वी गेट 2 अपॉन रूट 15 इंटू 10 इनवर्स, एलसीएम लेंगे ऊपर तो क्या आएगा 4t प्लस 1 और अपॉन में आएगा रूट 15 प्लस सी। अब टी किसको लेट किया था अपन ने 10x बाई टू को,
So next step, 2 upon root 15 into tan inverse 4 into tan x by 2 plus 1 upon root 15 प्लस सी. एक बार चेक कर लेते हैं. टी इक्वल टू टेन एक्स बाई टू. लेट क्या था? लेट टेन एक्स बाई टू इक्वल टू टी. Alternate method to solve. Only such type of integration 1 upon a sin x plus b cos x, or where a and b are irrational number or rational number. Then we can use alternate method also. Question number 5. I equal to integration 1 upon sin x plus root 3 cos x into dx. First of all, convert denominator either into formula of sin a plus b, sin a minus b, cos a plus b, or cos a minus b. For this, multiply and dividing numerator by sum of square of coefficient of sin x and cos x. अब sin x का कोफिशिएंट कितना 1 है, यानी स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर, और व्हेन वी सिंप्लीफाई वी गेट 2. यानी हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर को. तो 1/2 sin x प्लस रूट 3/2 cos x इंटू डी एक्स. 1/2 बाहर कॉमन आ जाएगा. अब क्या मिलेगा आपको, 1 अपॉन साइन एक्स एज इट इज, और 1/x किसकी वैल्यू होती है cos के अंदर, cos 60 की, यानी cos π/3 प्लस cos x एज इट इज, और रूट 3/2 किसकी वैल्यू होती है साइन के अंदर, साइन 60 की, यानी साइन π/3. सो नेक्स्ट स्टेप 1 अपॉन 2 अपॉन में किसका फॉर्मूला बन गया, 1 अपॉन साइन ए प्लस बी साइन एक्स प्लस π/3. अब 1 अपॉन साइन कितना होता है कोसेक, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या जाएगा, I इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन कोसेक एक्स प्लस π/3 इंटू डी एक्स. और कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log 10x/2 log 10x/2. अब x/2 पूरी क्वांटिटी x/2, तो क्या आ जाएगा x/2 प्लस π/6 प्लस सी. तो ये सिर्फ ओनली पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए जहाँ पे a sin x प्लस b cos x टाइप हो. नेक्स्ट टाइप नंबर 19. Evaluation of integrals of the form p sin x plus q cos x upon a sin x plus b cos x dx. To solve such type of integration, first change numerator by this formula. Numerator equal to a d by dx denominator plus b into denominator. कुछ बुक में ऐसा भी लिखा हुआ है a into denominator plus b into d by dx denominator. Both are correct, दोनों से सेम वैल्यू आएगी. And after this, comparing the coefficient of sin x and cos x and find the value of a and b. So now take one of the question of this type. Question number 6. I equal to integration 1 upon 1 plus 10x. ये इंटीग्रेशन की जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है 7.2 में दे रखा क्वेश्चन, 7.3 के अंदर, सॉरी.
अब देखो सबसे पहले अपने सामने कोई भी क्वेश्चन आता है अपन नॉर्मल इंटीग्रेशन की ट्राई करते हैं, कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है, ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता, हम क्या करते हैं नॉर्मली साइन को उसमें चेंज करते हैं। तो 1/1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या मिलेगा आपको, कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो उसी टाइप का बन गया नहीं बन गया, टाइप नंबर चेक कर लेते हैं अपन। पी साइन एक्स प्लस क्यू कॉस, इसमें पी की वैल्यू 0 है और क्यू की वैल्यू 1 रख दो, तो फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा और क्या मिलेगा cos x, और अपन में a और b की वैल्यू 1 ले लो तो sin x प्लस cos x, यानी cos x अपॉन sin x प्लस cos x। इस टाइप का हो गया। और इस इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को चेंज करते हैं, a डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर। अब चेंज करते हैं, सिंस न्यूमरेटर इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला यूज कर लिख रहा हूं मैं, a डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर कितना आपका है cos x, तो cos x इज इक्वल टू a। अब डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल करते हैं, cos x का तो होगा माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स का क्या होगा cos x, प्लस b के साथ क्या आ जाएगा एज इट इज आ जाएगा cos x प्लस साइन एक्स। अब नाउ ऑन कंपेयरिंग एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। सो ऑन कंपेयरिंग, कोफिशिएंट ऑफ sin x एंड cos x, पहले अपन cos x ले लेते हैं। इन लेफ्ट हैंड साइड कोफिशिएंट ऑफ cos x इज 1, इन राइट हैंड साइड कोफिशिएंट ऑफ cos x, जब इसे अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस है sin x प्लस a cos x, यानी एक तो a मिलेगा आपको, और फिर b का इंटू करेंगे अंदर तो b cos x यानी b मिलेगा, तो a प्लस b इक्वल टू 1। एंड कोफिशिएंट ऑफ sin x, there is no term which contains sin x in left hand side, so coefficient of sin x is 0, in right hand side coefficient of sin x is minus a और plus b। अब सिंप्लीफाई दिस टू इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब दोनों को हम सोल्व करेंगे, एक बार दोनों को प्लस कर लेते हैं तो 2b इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू तो क्या मिल जाएगी आपको 1/2, सो a इक्वल टू ऑल्सो 1/2। so after simplification we get a equal to b equal to 1/2, और यदि आप a और b की जगह 1/2 रखेंगे तो क्या मिलेगा वापिस आपको cos x ही मिल जाएगा, a के प्लेस पे 1/2 और b के प्लेस पे 1/2 रख के ओपन करो, क्या मिल रहा है माइनस 1/2 साइन एक्स, और यहाँ से प्लस 1/2 साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, और फिर उसके बाद 1/2 cos x प्लस 1/2 cos x हो गया। तो cos x को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1 सॉरी cos x इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट माइनस साइन एक्स प्लस cos x प्लस 1/2 cos x प्लस साइन एक्स। सो देयरफॉर I इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप, देयरफॉर I इक्वल टू, राइट डिनोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर में क्या था आपका cos x प्लस साइन एक्स, और न्यूमरेटर आपको क्या मिला था a की वैल्यू हमने कितने निकाली थी 1/2, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन था माइनस साइन एक्स प्लस cos x प्लस b की वैल्यू कितनी थी 1/2, और एज इट इज डिनोमिनेटर था यहाँ पे cos x प्लस साइन एक्स और इंटू डी एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप हम इंटीग्रेशन को सेपरेट कर रहे हैं, तो 1/2 माइनस साइन एक्स प्लस cos x अपॉन cos x प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन। अब cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स,
यानी आपस में कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 बचेगा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो, cos x प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये कैंसिल हो गया आपका तो 1 मिल गया आपको। अब देखो ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये तो आपका हो गया एफ डैश एक्स, बहुत सारी जगह अपन ने ऐसा किया है। और ये है आपका एफ एक्स, तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स यानी क्या हो जाएगा, लॉग एफ एक्स। तो 1/2 लॉग एफ एक्स यानी क्या आएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और प्लस 1/2 एक्स और प्लस सी। यानी इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर फिक्स होता है, जो आंसर का पैटर्न होता है वो क्या होता है, ए लॉग डिनोमिनेटर प्लस बी एक्स प्लस सी। बस ए और इनकी वैल्यूज डिफरेंट रहेगी जो अपन कंपेयर करके निकालेंगे। तो क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो ओरली बस वैल्यू निकाल देंगे, ओरली डिस्कस करके और उसको सोल्व कर सकते हैं। इस तरह की आप और भी प्रॉब्लम्स ले सकते हैं घर पे प्रैक्टिस के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।